Hello everyone, welcome to VDS first year classes, and this is my first video and I hope that you will enjoy this session. At the beginning I am starting from the basic of VDS first year, in which I am going to cover human anatomy, head and neck part. My purpose is to have those students who are unable to understand topics in their lecture. So initially I am going to describe the easiest way to learn and understand these topics, and after this session if you have any query regarding this topic, then you can comment on comment section below and I will take the queries in next session. So this is the first topic from anatomy, that is scalp. So what is the scalp? Scalp is the skin covering of the head. Means this is the covering of the head which is bordered by face at the front. Sorry, this is the front, and by the neck at the side and the back. Means I am taking the side view. So scalp is frontally bordered by the face. This is the portion of the face, so it is the front, and from the sides and from the back it is covered by the neck. Now extent of the scalp. What is the extension of the scalp? So it is in two parts, superiorly and posteriorly. Superiorly it is supraorbital margin, and posteriorly external occipital protuberance and superior nuchal lines, and on each side the superior temporal line. Now I am going to explain in briefly. तो सुप्राऑर्बिटल मार्जिन्स होती क्या हैं, कैसे हम इन्हें जानेंगे? तो जैसे कि हम स्टडी करते हैं, सपोज दैट इज द ऑर्बिट. ऑर्बिट के ऊपर जो मार्जिन्स होंगी उसे हम बोलेंगे सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन. मीन्स ऑर्बिट के ऊपर की मार्जिन्स को हम बोलते हैं सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन. सो सुपीरियरली इसके एक्सटेंशन क्या होगी? सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन. एंड पोस्टीरियरली एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस. आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू डायग्राम so you can understand easily. So I am going to show your figure from posteriorly. Here is three line of nuchal line. This is the highest, superior and the inferior. So extension of the scalp में हमारे superior nuchal line. This is the line superior nuchal line and this is the inferior. मतलब ये ऊपर है तो superior, नीचे है inferior. Superior nuchal line and inferior nuchal line. एंड एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस. जैसे कि हम जानते हैं ये ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल एरिया होगा, तो ये पॉइंट देख रहे हैं, इसे हम बोलेंगे ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस. प्रोट्यूबरेंस मीन्स कोई भी उभार टाइप की चीज प्रोट्यूबरेंस होगी. तो दिस इज द एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड सुपीरियर न्यूकल लाइन एंड इंफीरियर न्यूकल लाइन. एंड ऑन ईच साइड, जैसे कि पोस्टीरियर लिखा, ऑन ईच साइड टेम्पोरल लाइंस भी एक्सटेंशन है. तो ये है हम नॉर्मल वर्टिकलिस में दिखेंगे ये टेम्पोरल लाइन. दिस इज द टेम्पोरल लाइन दोनों साइड में, ऑन ईच साइड फ्रॉम टेम्पोरल लाइंस. तो हमने डायग्राम में देखा क्या क्या, ऑन ईच साइड टेम्पोरल लाइंस, सुपीरियर न्यूकल लाइन, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड इंफीरियर न्यूकल लाइन. तो पोस्टीरियरली हमने क्या क्या देखा डायग्राम में? एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, सुपीरियर न्यूकल लाइन, ऑन ईच साइड द सुपीरियर टेम्पोरल लाइन एंड आल्सो फ्रॉम द इंफीरियर न्यूकल लाइन. नाउ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर 5 लेयर से बनी होती है. जैसा कि इसका नाम है स्कल्प, ठीक उसी के निमोनिक से हम इसे लर्न करेंगे. SCALP. सो फर्स्ट वी टेक S. व्हाट इज S? स्किन. C फॉर कनेक्टिव टिश्यू which is also superficial fascia, and A for the epicranial aponeurosis.
which is also known as Gallia aponeurotica. L for loose areolar tissue, and P for pericranium. Okay, so 5 layers here. First is skin, second connective tissue and superficial fascia, third is epicranial aponeurosis and Gallia aponeurotica, then loose areolar tissue and pericranium. So now I am explaining each layer in brief. फर्स्ट लेयर क्या है हमारी? स्किन. स्किन क्या है? थिक है, हेयरी लेयर है. जैसे कि हमारी भी स्किन है, थिक है, हेयरी है क्योंकि यहाँ पे हेयर प्रेजेंट है. थिक है, हेयरी है, हेयर प्रेजेंट है. हेयर क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि हमारी स्किन में हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं और सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती है. तो ठीक इसी तरीके से स्कैल्प की भी स्किन है जो कि थिक है, हेयरी लेयर है और न्यूमरस सेबेसियस ग्लैंड कंटेन्स की है और हेयर फॉलिकल्स. तो स्किन एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस जो कि हमारी थर्ड लेयर है. तो फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर से अटैच होती है, किसी मीडियम के थ्रू अटैच होगी. तो वो मीडियम क्या हमारा? कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज सुपरफिशियल फेसिया. ठीक है. अब कनेक्टिव टिश्यू होते क्या हैं? कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट, सपोर्ट्स, बाइंड और सेपरेट अदर टिश्यू और ऑर्गन्स. मतलब कि हमें जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो या तो सेपरेट कर देंगे या उन्हें सपोर्ट देंगे या किसी ऑर्गन टिश्यू को सपोर्ट देंगे या उन्हें सेपरेट कर देंगे. और सुपरफिशियल फेसिया क्या होती है? ये थिन लेयर होती है लूज फैटी कनेक्टिव टिश्यू की. सुपरफिशियल क्या है हमारी? थिन लेयर है लूज फैटी कनेक्टिव टिश्यू की. ठीक है. लूज फैटी कनेक्टिव टिश्यू की थिन लेयर है जो किस किस को आपस में जोड़ती है? स्किन को और एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस को. तो फर्स्ट लेयर इज बाइंड बाय सेकेंड लेयर. ठीक है. फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर से सेकेंड लेयर के थ्रू अटैच रहेगी. तो फिर से हम देखते हैं. स्किन क्या है? थिक है, हेयरी लेयर है, कंटेंस की रहेगी न्यूमरस सेबेसियस ग्लैंड एंड हेयर फॉलिकल्स. देन स्किन इज अटैच्ड टू epicranial aponeurosis by superficial fascia. So now this is the second layer, connective tissue and superficial fascia. It is also called as subcutaneous layer of fat. Means subcutaneous मतलब cutaneous means skin, cutaneous means skin, सब मतलब beneath the skin. स्किन की जो outer covering है उसके जैसे कि हम हमारे हाथ की स्किन है, इसके जो अपर कवरिंग है इसके नीचे की, जस्ट नीचे की जो लेयर होगी उसे हम बोलेंगे सबक्यूटेनियस लेयर. स्किन के नीचे की लेयर सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ फैट. तो हम इसे और क्या बोलते हैं? सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ फैट. सो दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ द स्कैल्प. सो एंड ऑल्सो नोन एज सुपरफिशियल फेसिया. फेसिया होता क्या है? ये लैटिन वर्ड्स होती है जिससे बोलते हैं बैंड. फेसिया क्या है? बैंड और सीथ है कनेक्टिव टिश्यू की, प्राइमरी कोलेजन की, beneath skin that attach and stabilize and encloses and separate muscles and other internal organs. ठीक है. तो ये क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू का बैंड और सीट होता है. सिंपली हम समझेंगे फेसिया क्या है? ये बैंड है और सीट है कनेक्टिव टिश्यू का, कोलेजन का, जो स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है. क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि जैसे हमने देखा स्किन और एपिक्रेनियल एपोन्यूरोटिका को अटैच कर रहा है. तो इसका काम क्या हो गया? अटैच कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है और ऑर्गन्स को भी इनक्लोज कर रहा है. ठीक है. तो फेसिया का मतलब ये होता है. नो अब सबक्यूटेनियस लेयर होती क्या है और ये क्या है? जैसे कि हमने पढ़ा ये सीट है कनेक्टिव टिश्यू के, कोलेजन पाए जाते हैं. तो ये फाइब्रस होती है और डेंस होती है. फाइब्रस होती है, डेंस होती है. इस वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं? फाइब्रो फैटी लेयर. बीनीथ स्किन के बीनीथ प्रेजेंट होती है. अब ये कहाँ कहाँ डेंस होती है, कहाँ कहाँ लेस डेंस होती है? ये दो पार्ट में होंगी, सेंटर और पेरीफेरी पे. तो सेंटर पे ये मोर फाइब्रस होंगी और डेंस, देन पेरीफेरी में लेस होंगी देन सेंटर पोर्शन. एंड कनेक्ट्स स्किन टू एपोन्यूरोसिस. सुपरफिशियल फेसिया स्किन को एपोन्यूरोसिस से कनेक्ट करते हैं और ये नर्व वेसल्स भी कंटेन्स किए रहते हैं. नर्व वेसल्स कंटेन्स है मीन्स यहाँ पे ब्लड सप्लाई होगी. तो इस पोर्शन पे ब्लड सप्लाई है तो इसका मतलब अगर यहाँ पे इंजरी होती है तो यहाँ पे बहुत ब्लीडिंग होगी. किसी भी पार्ट में जहाँ पे नर्व्स और ट्रीज या वीन्स हों और वहाँ पे इंजरी लग जाए तो ब्लीडिंग होगी. तो ये नर्व वेसल्स कंटेन्स किए रहते हैं
और अगर इंजरी होगी तो यहाँ पे ब्लीडिंग होगी, ठीक है। तो ये फाइब्रोफैटी लेयर है, जैसे कि हमारी ये पाम की होती है, इसी टाइप से फाइब्रोफैटी लेयर है, ठीक है, डेंस लेयर है। तो अब थर्ड लेयर एक्सप्लेन करने से पहले हम यहाँ पे एक मसल्स के बारे में डिस्कशन लेना चाहते हैं, जो कि ऑसिपिटल फ्रंटालिस मसल है, क्योंकि ये थर्ड लेयर में भी रोल प्ले करती है और यहाँ पे भी करती है। तो यहाँ पे डिस्कशन लेना सही रहेगा ताकि आपको ये समझ में आए। ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल्स मीन्स नाम से है, ऑसिपिटो फ्रंटालिस मतलब ऑसिपिटल और फ्रंटल दो मसल से मिलकर बनी होती हैं। तो फ्रंटल और फ्रंटालिस, हम इसे फ्रंटालिस बोलते हैं, और इसे ऑसिपिटल या ऑसिपिटलिस, ठीक है। और ये दोनों कहाँ पे जाके इंसर्ट होती हैं? इंसर्टेड एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस पे, दैट मीन्स थर्ड लेयर पे जाके इंसर्ट हो जाती हैं, ठीक है। दो मसल्स हैं, फ्रंटल और ऑसिपिटल, जो कहाँ पे इंसर्ट हो जाती हैं? थर्ड लेयर पे, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस पे। और इससे हम और भी नाम से बोलते हैं ऑसिपिटल वैलीज, ऑसिपिटल वैलीज एंड फ्रंटल वैलीज, एंड फ्रंटल वैलीज, ठीक है। So first occipital valleys, it is a small and separate, स्मॉल होती हैं और सेपरेट होती हैं। ईच अराइजेस फ्रॉम द लेटरल 2/3 ऑफ द सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन। मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है, माई ड्राइंग इज नॉट सो गुड, सो इट इज़ द ऑसिपिटल व्यू। जैसा हमने पहले देखा है, ये सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन एंड इंफीरियर न्यूक्लियर लाइन ऑसिपिटल व्यू में। तो ये लेटरल थर्ड ऑफ द, कहाँ से? लेटरल 2/3 ऑफ सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन से अराइज होंगे। और ये सप्लाई किससे होती है? पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, फेशियल नर्व ब्रांच से स्कल्प हमारी सप्लाई होगी कौन, और ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच होगी फेशियल नर्व की। फिर फ्रंटल वैलीज, ये क्या है? लॉन्ग है और वाइड है, लंबी होंगी और चौड़ी होंगी ये। और ये कहाँ से अराइज होती हैं? फ्रॉम द स्किन ऑफ द फोरहेड, जो हमारी फोरहेड की स्किन है। आगे से मैं बताऊँ फ्रंटल व्यू से, हमारी फोरहेड एरिया हो गया यहाँ पे, तो हमारे स्किन ऑफ फोरहेड से ये अराइज होंगी, मिंगलिंग विथ ऑर्बिकुलस ऑक्यूलाई एंड कॉरिगेटर सुपरसिलाई। आई एम रिपीटिंग, मिंगलिंग विथ ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई एंड कॉरिगेटर सुपरसिलाई, मतलब यहाँ पे हमारी ऑर्बिट होगी, तो हमारे आंखों के किनारे जो मसल्स होंगी उसे बोलते हैं ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई एंड कॉरिगेटर सुपरसिलाई भी। तो ये मिक्स कर देंगे, मिंगलिंग में मिक्स कर जाना, तो ये फोरहेड से होते हुए आएंगी और आँख के जो मसल्स हैं उससे मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। तभी क्या होता है, जब हम अपने आईब्रो को अगर रेज करें, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल व्रिंकलिंग बन जाएगी। जब अपनी आईब्रो को रेज करेंगे तो वो किस वजह से होती है? ये जो व्रिंकलिंग बनती है वो इन्हीं मसल्स का यहाँ पे रोल होता है। और ये सप्लाई किससे होती है? टेम्पोरलिस ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, टेम्पोरलिस ब्रांच ऑफ फेशियल। Here we can see orbicularis oculi, आई के चारों तरफ, और this is here is corrugator supercilii, corrugator supercilii and orbicularis oculi, ठीक है। तो फ्रंट से ये होते हुए आएगी और इससे मिंगल्स कर जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे डायग्राम, हॉरिजॉन्टल विंकलिंग दिख रही है, मतलब जब आईब्रो को रेज किया तो हॉरिजॉन्टल विंकलिंग दिखेंगे। ये फ्रंटालिस मसल्स है, सरप्राइज जब होंगे तब, तो इन मसल्स का यहाँ पे भी रोल होगा। फ्रंटल लेयर एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, ये होता क्या है? टफ लेयर ऑफ डेंस फाइब्रस टिश्यू अटैच इन इंटरवल बिटवीन यूनियन ऑफ द ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल्स टू एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड हायर न्यूक्लियर लाइन एंड ऑसिपिटल बेलिस। मतलब ये टफ लेयर होती हैं डेंस फाइब्रस टिश्यू की डेंस लेयर होती हैं, ये टफ होती हैं और ये अटैच होती है ऑसिपिटल फ्रंटालिस। जैसे कि मान लीजिए ये ऑसिपिटल है, ये फ्रंटालिस मसल्स है, तो इसके बीच का जो इंटरवल होगा, यहाँ इन दोनों के यूनियन में जहाँ पे मिलेंगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर ये मिल रही हैं ऑसिपिटल फ्रंटालिस मसल्स, तो इस यूनियन वाले पॉइंट पे ये हमारे एपोन्यूरोसिस मिलेंगी। और क्या होंगी? फ्रंटालिस मसल्स टू एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस हाई न्यूक्लियर लाइन एंड ऑसिपिटल बेलिस तक।
और ये एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस का मतलब क्या होता है? एपिक्रेनियल मीन्स स्ट्रक्चरल कलेक्टिवली कवर्स द स्किन, स्ट्रक्चर कलेक्टिवली कवर्स द स्किन स्कल, मतलब कि ये स्कल को कलेक्टिवली पूरी तरीके से कवर हुआ रहता है। एपिक्रेनियल मतलब, क्रेनियल मतलब स्किन, एपी मतलब उसके ऊपर का पार्ट, तो स्कल की पूरी कवरिंग को इसका के पूरी पार्ट को कवर किया रहेगा। एंड एपोन्यूरोसिस क्या होती है? लेयर ऑफ फैट ब्रॉड टेंडन्स। क्या है? फ्लैट ब्रॉड टेंडन्स की लेयर है जो किसको कवर की हुई है? पूरे स्कल्स को कवर की हुई है, ठीक है। एंड दिस इज फ्रीली मूवेबल ऑन पेरिक्रेनियम अलोंगिंग ओवरलाइंग एंड एडहेरेंट स्किन एंड फेसिया। जो हमारी फोर्थ लेयर है पेरिक्रेनियम, ठीक है, मतलब कि जो हमारे क्रेनियम मतलब स्कल एंड पेरी मतलब पेरीफेरी, स्कल के वन थिंग मोर वी कैन से पेरिक्रेनियम मीन्स सराउंडिंग द स्कल, मीन्स here we can't say peri मतलब periphery because in fifth layer pericranium so peri means around and cranium means skull, so we can also say pericranium means around the skull. Fourth layer loose areolar tissue, बेसिकली होते क्या हैं? ये स्काल्प की फोर्थ लेयर है और इनका काम क्या होता है? जैसे कि हम नॉर्मल स्प्रिंग लें, फर्स्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। नॉर्मल स्प्रिंग है तो उस पर क्या होता है कि जब हम फोर्स लगाएंगे या उनको प्रेस करेंगे तो वो अपने जैसे कि इतना बड़ा है, और जब हम इन्हें प्रेस करेंगे तो अपनी ओरिजिनल साइड से प्रेस हो जाएगा, और जब हम इनको वापस छोड़ देंगे तो अपने वापस ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे आ जाएगा। ठीक इसी तरह हमारा एरोलर टिश्यू का भी काम होता है कि ये क्या करते हैं, इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में इनका रोल होता है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन मीन्स मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में कॉन्ट्रैक्ट हो रही है कोई चीज़, मतलब सिकुड़ रही है, लेमन लैंग्वेज में बोलें तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मसल्स, उसमें इनका रोल है। तो जब एनर्जी पड़ेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर जब रिलैक्स होंगी तो वापस अपने ओरिजिनल। एंड द एक्सटेंशन ऑफ द लूज एरोलर टिश्यू इज एंटीरियरली या पोस्टीरियरली। मैंने शॉर्टकट यूज़ किए हैं, आई होप आप लोग भी समझते होंगे, ऐसे यूज़ करते होंगे। सो एंटीरियरली पोस्टीरियरली, एंटीरियरली कहाँ से? इनटू आईलिड्स, हमारी आईलिड्स तक ये एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। और पोस्टीरियरली टू हाईएस्ट एंड सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन। फिर से मैं बता रही हूँ, और सिपिटल व्यू था जो हमारा, जो यहाँ पे हमारी सुपीरियर एंड इंफीरियर न्यूक्लियर लाइन थी और एक हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइन थी। तो ये हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइन है, ये सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन है, ये इंफीरियर न्यूक्लियर लाइन है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट एंड सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन तक एंड ईस्ट साइड ऑफ द सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। और जो हमारा इस व्यू में हमने देखा था ये टेम्पोरल लाइन्स तक, तो इनका एक्सटेंशन यहाँ पे है, ठीक है। टेम्पोरल लाइन से टेम्पोरल लाइन में हायर न्यूक्लियर लाइन, सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन एंड इंफीरियर न्यूक्लियर लाइन पे नहीं, हायर न्यूक्लियर लाइन, सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन एंड टेम्पोरल लाइन, इन लाइन तक इनका पोस्टीरियरली एक्सटेंशन होगा और एंटीरियरली आईलिड्स तक होगा। आईलिड्स पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रंटालिस मसल्स का कोई भी बोनी अटैचमेंट नहीं होगा। नाउ फिफ्थ लेयर पेरिक्रेनियम। ये पेरिक्रेनियम आए कहाँ से? ये ग्रीक वर्ड है। पेरी मीन्स होता है अराउंड, क्रेनियम मतलब होता है स्कल, ठीक है। तो अराउंड द स्कल, जैसे कि पेरियोस्टियम, ये क्या है? वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। एक्सटर्नली पेरियोस्टियम, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं पेरियोस्टियम, एनवेलपिंग द स्कल, ठीक है, आउटर सरफेस। मतलब स्कल की जो आउटर सरफेस है वो क्या? पेरियोस्टियम है। जैसे कि हमारी लॉन्ग बोन में होती है उनकी आउटर जो हमारा पार्ट होता है पेरियोस्टियम हम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जो स्कल का है वो पेरियोस्टियम है। देन स्कल बोन लूजली अटैच्ड, स्कल बोन से ये क्या होती है? लूजली अटैच्ड होती है। पेरिक्रेनियम स्कल बोन से लूजली अटैच्ड होंगी यहाँ पे, बट सूचर से ये टाइटली फर्मली अटैच्ड होंगी। सूचर हमारे जैसे कि दो बोन है, इनके बीच में सूचर होती हैं, ठीक है। जब फ्यूज हो जाती हैं एडल्ट एज में तो यहाँ पे सूचर बना लेती हैं, तो सूचर से फर्मली अटैच्ड होती हैं और स्कल बोन से ये लूजली अटैच्ड होती हैं पेरिक्रेनियम। सूचर से क्या? वेयर सूचरल लिगामेंट्स बाइंड्स पेरिक्रेनियम टू एंडोक्रेनियम।
सूचस पे क्या करेंगे, यहाँ पे सूचरल लिगामेंट है। क्यों फॉर्मली टेस्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिगामेंट है और लिगामेंट या मसल्स कहीं भी होती हैं तो फॉर्मली अटैचमेंट होता है। तो लिगामेंट जो है वो फॉर्मली ने अटैच कर रही हैं और बाइंड्स कर रही हैं पेरिक्रेनियम टू एंडोक्रेनियम। एंडोक्रेनियम मतलब पेरी मतलब सराउंडिंग का, एंडो मतलब इनके अंदर के पार्ट का, ठीक है। अब अगर एनाटॉमी के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है स्कल पे, तो हमें सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन भी डिस्क्राइब करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन में हमारी यहाँ पे 6 लेयर होंगी, जिसे मैं बता रही हूँ। ये क्या है, एरिया बिटवीन सुपीरियर टेम्पोरल लाइन एंड जाइगोमेटिक आर्च के बीच का ये एरिया है, ठीक है। सुपीरियर टेम्पोरल लाइन एंड जाइगोमेटिक आर्च के बीच का ये एरिया है। ये 6 लेयर कंटेंट्स किए होते हैं। कौन कौन सी, S फॉर स्किन, C फॉर कनेक्टेड टू सी या सुपरफिशियल फेसिया, A फॉर एपिक्रेनियल एपोन्यूरोटिका, T for temporal fascia, then again T for temporal muscles and P for pericranium. So students, I am giving you a mnemonics to learn it by heart. So sleeveless coat and trousers top पहनो। S for, where is S for skin, C for connective tissue, A for epicranial aponeurotica, T for temporal fascia, T for temporal muscles and P for pericranium. Sleeveless coat and trouser top पहनो। This is the mnemonics for superficial temporal regions में 6 layers के लिए। इससे हम easily याद कर सकते हैं। अब हम नर्व सप्लाई के बारे में बात करेंगे। नर्व सप्लाई एंड आर्टेरियल सप्लाई, ये हमारा डायग्राम है स्कल्प का। अब जो येलो से मैंने बनाया हुआ है ये है हमारा नर्व, ठीक है। तो येलो से हम नर्व को एन्यूमरेट करते हैं और यहाँ पे रेड से हम आर्टरी को एन्यूमरेट करते हैं और ब्लू से हम वीन्स को करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे येलो साइड वाली नर्व्स हैं एंड रेड साइड वाली हमारी आर्टरीज हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कहाँ पे क्या क्या इनकी पोजिशंस हैं। तो नर्व लेंगे, ये वाली जो नर्व है हमारी ये है सुप्राट्रॉक्लियर नर्व and this is the supraorbital nerve, supratrochlear nerve, supraorbital nerve. This is 1 2 3 है ये जाइगोमेटिक टेम्पोरल नर्व, ठीक है। जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, सेकेंड इज द टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व एंड 6 इज द ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, ठीक है। ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, दिस इज ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। फर्स्ट क्या है, जाइगोमेटिको टेम्पोरल, सॉरी दिस इज द फर्स्ट सुप्राट्रॉक्लियर नर्व, देन सुप्राऑर्बिटल नर्व, देन जाइगोमेटिको टेम्पोरल, देन टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, देन ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। अच्छा, ये जितनी भी है हमारी ये हमारा पिन्ना है, ईयर पिन्ना, ईयर के पहले हैं, ठीक है। तो प्री ऑरिकुलर, नाउ पोस्ट ऑरिकुलर, जो कान के पीछे होंगी वो क्या क्या है, ये वाला हमारा है ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, ठीक है, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। देन दिस इज द पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, मतलब कान के पीछे पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व। अब यहाँ पे हमारा ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व है तो लेजर ऑरिकुलर नर्व भी होगा, नेजर ऑरिकुलर नर्व, ग्रेटर एंड लेजर एंड बीच में पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व। देन यहाँ पे ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व, ऑसिपिटल व्यू आ गया यहाँ पे, यहाँ की जो सप्लाई होगी वो ऑसिपिटल नर्व से नाम से होंगी। तो ये है हमारे ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व, दिस इज द ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व एंड दिस इज द थर्ड ऑसिपिटल नर्व, ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व, थर्ड ऑसिपिटल नर्व। टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नर्व सप्लाई हो गई यहाँ पे, ठीक है, 10 नर्व सप्लाई। तो फिर से हम देखते हैं, सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्राऑर्बिटल, जाइगोमेटिको टेम्पोरल, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ऑरिकुलर टेम्पोरल, ठीक है। ये क्या हमारा कान के आगे क्या है, फ्रंट प्री ऑरिकुलर, देन पोस्ट ऑरिकुलर में ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, लेजर ऑरिकुलर नर्व, देन ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व, देन थर्ड ऑरिकुलर नर्व। ये हमारी नर्व सप्लाई है। देन हम चलेंगे आर्टेरियल सप्लाई में। आर्टेरियल में भी नेम मैच करते हैं। दिस इज हमारा
ये वाला हो गया हमारा सुप्राट्रॉक्युलर आर्टरी, ठीक है, सुप्राट्रॉक्युलर आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, यहाँ भी था हमारा सुप्राट्रॉक्युलर एंड सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्राट्रॉक्युलर सुप्रा ऑर्बिटल यहाँ भी है, सुप्राट्रॉक्युलर एंड सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, यहाँ नेम मैच करते हैं। देन ईयर के पहले क्या है, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, सुपरफिशियल अपर साइड में, ठीक है, आगे का है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, कान के पास है, यहाँ पे टेम्पोरल एरिया होगा, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। नाउ कान के पीछे पोस्टीरियर, आगे था तो सुपीरियर, पीछे है तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, कान के पीछे है ईयर से रिलेटेड पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। देन यहाँ पे जो ऑसिपिटल एरिया में सप्लाई करेगी ये क्या है, ऑसिपिटल आर्टरी, ठीक है। अब मैं आपको निमोनिक्स दे रही हूँ इजिली वे में याद करने का। सबसे पहले आर्टरी का सुपीरियर ट्रॉक्लियर, सुपीरियर ऑर्बिटल, सुपरफिशियल टेम्पोरल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ऑसिपिटल आर्टरी, क्या है आगे का लेंगे एस 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 पी ओ। सो ट्रिपल एस पी ओ, ठीक है, ट्रिपल एस पी ओ। तो इसका निमोनिक्स होगा 100 सवाल पे आउट, 100 सवाल पे आउट, ठीक है। एस फॉर सुप्राट्रॉक्लियर, दिस एस फॉर सुप्रा ऑर्बिटल, दिस एस फॉर सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, दिस पी फॉर पोस्टीरियर ऑरिकुलर, देन ओ फॉर ऑसिपिटल आर्टरी, ठीक है। तो इससे हम आर्टरीज के नेम इजिली वे में याद कर लेंगे। ये हमारा निमोनिक्स हो गया आर्टरी के लिए। देन हमारा आया नर्व के लिए, सुप्राट्रॉक्लियर एस, देन एस, देन जैगोमेटिक का जेड, टेम्पोरल वाला टी, ऑरिकुलर से ए, ग्रेटर का जी, पोस्टीरियर का पी, लेसर का ए, फिर देन जी एंड देन थर्ड, बिकॉज थर्ड ऑसिपिटल नर्व। तो ज्ञान पे ज्ञान लो तुम, ठीक है, सोचना समझना जीरो तब और ज्ञान पे लो ज्ञान तुम। हम सोच समझ जीरो रहे हैं तब और ज्ञान पे ज्ञान लें हम, ठीक है। तो वही चीज है, सोचना समझना जीरो तब और ज्ञान पे लो ज्ञान न्यू। दिस इज द निमोनिक्स फॉर नर्व। नाउ लिम्फेटिक ड्रेनेज, वो मैंने जो बताया वो नर्व एनर्जी सप्लाई था। लिम्फेटिक ड्रेनेज में एंटीरियर पार्ट में ये ड्रेन करेगी प्री ऑरिकुलर, मतलब कि जो हमारा ऑरिकल्स थी, एयर है ये, ठीक है, ये ईयर पार्ट है। तो प्री ऑरिकुलर, कान के पहले प्री ऑरिकुलर और पैरोटिड लिम्फ नोड, हमारे ईयर के पास ही हमारे पैरोटिड होती है ना, तो प्री ऑरिकुलर और पैरोटिड लिम्फ नोड, प्री ऑरिकुलर और पैरोटिड लिम्फ नोड में एंटीरियर पार्ट इसका ड्रेन करेगा, ठीक है, एंटीरियर पार्ट ड्रेन करेगा एंड पोस्टीरियर पार्ट ड्रेन करेगा पोस्टीरियर ऑरिकुलर। दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर ऑरिकुलर पे हमारा पोस्टीरियर पार्ट ड्रेन करेगा पोस्टीरियर ऑरिकुलर और मैस्टॉइड एंड ऑसिपिटल लिम्फ नोड, ठीक है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर और मैस्टॉइड एंड ऑसिपिटल लिम्फ नोड पे हमारा पोस्टीरियर पार्ट ड्रेन करेगा। एंड नर्व सप्लाई का एक ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पे। ये क्या है, स्काल्प एंड टेम्पल पे सप्लाई करेगा, टेम्पल मतलब टेम्पल पार्ट, ठीक है, एंड स्काल्प। 10 नर्व्स होंगी ऑन ईच साइड, ठीक है, 10 नर्व्स होंगी ऑन ईच साइड, जिसमें से 5 नर्व होंगी हमारी, 5 में से 4 जो हमारी सेंसरी होंगी एंड 1 जो है मोटर होंगी, ठीक है। ये क्या करेंगे, एंटर्स स्काल्प इन फ्रंट ऑफ द ऑरिकल, ठीक, ये स्काल्प में एंटर करेंगे फ्रंट ऑफ द ऑरिकल से। So now this is the end of this topic and remaining part venous drainage I will cover briefly in my next session. So if you have any query and doubts and suggestion, then comments on my comment sections. Thank you.